آج جو ہم آپ کی خدمت میں ہیں ایک خاص مقصد کے تحت ہے، ایک خاص ارادے کے تحت ہے، اور یہ جو مقصد ہے یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی مانگ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نشے کی چیزیں بہت ہی عام ہو گئی، بہت ہی عام ہو گئی۔ ایک تو شراب، دارو سب جانتے ہیں، لیکن شراب کے علاوہ، دارو کے علاوہ بھی بہت ساری نشے کی چیزیں ہیں، جیسے کہ گانجا ہے، اسی طرح جو ہے انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جاتا ہے، سون کر لیا جاتا ہے، اور بھی طرح طرح کے نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے علاقے میں عام ہو گئی۔ پہلے اتنا عام نہیں تھی یہ چیزیں، لیکن ابھی عام ہو گئی اور ریٹ بھی بہت زیادہ نہیں، کم ہے۔ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں یہ نشے کی چیزیں مل رہی ہیں۔ اس کو ہم دشمن کی سازش سمجھے کہ دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر بالکل ہی کمزور کر دے۔ دیکھیے، جب نشہ لیتا ہے تو نشہ لینے کی وجہ سے اس کی عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا جسم، اس کی باڈی بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ کینسر کی بیماری، ٹی بی کی بیماری اور بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح نشہ لینے کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بالکل کمزور پڑ جائیں گے، ان کے اندر ہمت و طاقت نہیں رہے گی کہ وہ کسی کو جواب دے سکے یا کچھ کہہ سکے یا جو اپنا دفاع کر سکے، اپنی بات رکھ سکے۔ تو وہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے، لیکن ہم دشمن کی سازشوں کو بہانہ بنا کر چھوڑ دیں اور اس کی فکر نہ کریں اور اس سلسلے میں کوئی تدبیر اختیار نہ کریں تو یہ ہماری کمزوری سمجھی جائے گی۔ ہمارے جو بچے ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ 8 سال، 10 سال، 12 سال کے بچے تک، 8 سال، 10 سال، 12 سال کے بچے، 15 سال کے بچے آج نشے کی چیزیں لے رہے ہیں۔ یہاں آپ کے اضلاع میں جو ہے بہت سارے بچے ہیں جو جا کر نشہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ یہ جو نشہ ہے یہ انسان کو ہر اعتبار سے ختم کر دیتا ہے، ہر اعتبار سے۔ دیکھیے مسلمانوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے استعمال کرنے سے، جن چیزوں کے لینے سے منع فرمایا ہے، ہم ان چیزوں کو نہ لیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے نا، تقاضا۔ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تو بس وہ حرام ہے، ہم اس تقاضے کے مطابق جو ہے شراب پینا چھوڑ دیں، یا جو نہیں پی رہے ہیں وہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب تھی اور دوسری نشے کی چیزیں نہیں تھی، لیکن جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح شراب کے علاوہ جو دوسری نشے کی چیزیں ہیں جن کے پی لینے کے بعد انسان کی عقل مغلوب ہو جائے تو وہ نشہ کی چیز بھی حرام ہے۔ میں بار بار پروگراموں میں یہی کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سگریٹ ہے، گٹکا ہے، اگر سگریٹ پینے کے بعد یا گٹکا لینے کے بعد
इंसान की अकल मगलूब हो जाए, अकल उसकी ख़त्म हो जाए, यानी थोड़ी देर के लिए सही, तो वो सिगरेट पीना भी हराम है, वो गुटखा लेना भी हराम है। तो हर ऐसी नशे की चीज़ जिसको लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद अकल काम करना छोड़ दे, वो नशे की चीज़ क्या है? हराम है। आप पान खाते हैं तो आपके लिए पान खाना हराम नहीं है, इसलिए कि पान खाने से अकल ख़त्म नहीं होती है, इंसान की अकल बाकी रहती है, समझ रहे ना। लेकिन अगर पान के साथ आप कोई ऐसी चीज़ मिला दें कि जिनकी वजह से आपकी अकल ख़त्म हो जाए, आपके अकल काम करना छोड़ दे, तो फिर वो पान भी आपके लिए क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा, जायज़ नहीं होगा। तो हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हराम है शरीयत की तरफ से, तो हम कोई भी नशे की चीज़ ना लें और न ही अपने बच्चों को नशे की चीज़ दें, और अगर ले रहे हैं तो उनको रोकें। ये हमारी ईमानी तकाज़ा है। कैसा तकाज़ा है मुसलमानों? कैसा तकाज़ा है? ईमानी तकाज़ा है, ये हमारे ईमान का तकाज़ा होना चाहिए। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो नशे की चीज़ें हैं, ये नशे की चीज़ें हराम तो है ही, लेकिन उन चीज़ों के लेने से क्या होता है कि उसका इफ़ेक्ट, उसका जो असर होता है, या कहिए कि उसका जो अटैक होता है, हमला होता है, वो सबसे पहले इंसान की अकल पर होता है। किस पर होता है? इंसान की अकल पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अकल अता की है ना, ये अकल जो इंसान की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान अक्लमंद है, उसको अकल है, तो आप उसको जो है सही सालिक और सही कहते हैं, लेकिन अगर अकल नहीं है तो आप उसको क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। क्या कहते हैं? पागल हो गए। तो जब वो पागल हो जाएगा तो वो किसी काम का रहेगा नहीं रहेगा। तो ये नशे की चीज़ इंसान की सबसे पहले अकल को ख़राब करती है, अकल को बर्बाद कर देती है। और जब किसी की अकल ख़त्म हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता। आज जितने नशेड़ी हैं, नशा लेने वाले हैं, देखेंगे आप कि नशे की वजह से या नशा लेने के लिए वो अपने भाई को मार रहे हैं, अपने बाप को मार रहे हैं, अपनी माँ को मार रहे हैं। एक हैदराबाद का वाक़या में सुनाता हूँ कि एक लड़के ने अपनी माँ से पैसा मांगा नशा खरीदने के लिए, नशे की चीज़ को क्या करने के लिए? खरीदने के लिए। उसकी माँ ने कहा कि हम नहीं देंगे पैसा इसके लिए, तो उसने अपनी माँ को ही मदद कर दिया, अपनी माँ को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। तो जब ये नशा किसी को चढ़ा हुआ होता है तो उसको सामने कुछ नज़र नहीं आता, नज़र आता है कुछ? उसको कुछ भी नहीं आता। तो इस तरह वो मर्डर करेगा, कत्ल करेगा, मारेगा, कुछ भी करेगा। और आजकल जितने जो फहाशियाँ, बेहयाइयाँ हो रही है, रेप हो रहे हैं, ज़िना हो रहे हैं, इनमें जो सबसे बड़ी जो वजह है वो नशा है। क्या है? नशा है। आजकल हमारे नौजवान बच्चे नशा लेते हैं, नशे की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद उनको जोश पैदा होता है और वो किसी जो मासूम बच्ची को उठा लेते हैं और उनके साथ जाकर रेप करते हैं, ज़िना करते हैं। तो ये रेप, ज़िना और ये फहाशियाँ जो हो रही है, ये सब नशे की वजह से हो रही है। तो ये जो नशा है मेरे मुसलमान भाइयों, ये जितने जराइम और क्राइम है, समझ रहे ना, जितने जराइम और क्राइम और जितने फहाशियाँ, बेहयाइयाँ, इन सब की जड़ है। इन सब की क्या है मेरे मुसलमान भाइयों? जड़ है। हदीस पाक में शराब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल फवाहिश और उम्मुल खबाइस कहा है। उम्मुल फवाहिश का मतलब है तमाम बेहयाइयों की जड़, और उम्मुल खबाइस का मतलब है तमाम कराइम और जराइम की जड़। जितने जराइम और कराइम हो रहे हैं वो सब की जड़ क्या है? ये नशा है। तो नशा लेने की वजह से पूरा समाज बिगड़ जाता है। क्या बिगड़ जाता है मुसलमान भाइयों? पूरा समाज, पूरा सोशल बिगड़ जाता है। और ये तो समाज का नुकसान है और खुद उसका नुकसान है। जैसा कि आपको बताया कि जब कोई नशा लेता है उसकी अकल ख़त्म होती है, बीमारियां पैदा होती है। हमारे गांव में एक लड़के का इंतकाल हुआ, उसकी वजह क्या थी कि उसको टीबी की बीमारी हो गई और खतरनाक हो गई। अब मैंने पूछा कि भाई इसको टीबी की बीमारी क्यों हुई, तो सब साथियों ने उनके बताया कि ये नशा बहुत ज़्यादा लेता था, गांजा बहुत ज़्यादा लेता था, समझ रहे ना, भंग बहुत ज़्यादा लेता था। यानी आजकल तो फोटो से पता नहीं क्या क्या नशे की चीज़ें आ गई हैं, वो लेता था, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो गई थी। और अभी जब 10-15 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है, हम उनको मिट्टी देने के लिए भी गए थे,
तो ये बीमारियां तमाम उनकी वजह से पैदा होती है। जब बच्चे को इंसान पालता पुसता है, बड़ा करता है, तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है? उसकी ख्वाहिश ये होती है, वो ये चाहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर हमारा क्या बनेगा? सहारा बनेगा। बनता है ना? क्या सोचता है? ये सोचता है कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? सहारा बनेगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन जब नशा लेता है तो वो सहारा क्या बनेगा? वो उसके लिए वबाल बन जाता है। उसके लिए क्या बन जाता है मुसलमानों? वबाल बन जाता है, उसके लिए मुसीबत बन जाता है। तो इसलिए तकरीरें बहुत हो जाएगी, इंशाअल्लाह हम बाद में भी आएंगे। लेकिन अब ये जो नशा है, जिनकी वजह से ये तमाम की तमाम बीमारियां पैदा हो रही है और ये इतनी ख़तरनाक जहर और लानत है, तो इन चीज़ों से आपको और अपने नस्ल को, अपने बच्चों को बचाना है। बचाना या नहीं बचाना है? बताइए, बचाना ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, सही सालिम हों, तंदुरुस्त और अच्छे जिस्म वाले, बॉडी वाले हों, काम करने वाले हों और आपका सहारा बने, तो अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अभी आप आगे नहीं बढ़े और वो बच्चे आपके ख़राब हो गए, सब कुछ बिगड़ गया, तो फिर बाद में कोई काम आने वाला नहीं होगा। तो बताइए आप सबसे पहले कि ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये काम कि हमारे बच्चे जो नशा ले रहे हैं उनको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए ना? समझ रहे ना मेरी बात? उनको रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा, समझ रहे ना? अंबिया किराम का सिलसिला तो क्या हो चुका है? बंद हो चुके हैं। अब अंबिया किराम भी नहीं आएंगे, हम ही लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा ना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरी उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा किए गए हो। तुम उनको अच्छी बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। तो इसलिए हमको बुरी बातों से रोकना है, बुरी चीज़ों से रोकना है। तो रोकेंगे ना इंशाअल्लाह। तो बातें बहुत होगी। हमारे साथ जो हमारे मास्टर मंजर आलम साहब, जो बिगोर हाट में एक स्कूल चलाते हैं, और हम लोग जो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो अभी आज चूँकि लोगों को कुछ फुर्सत कम है, तो इसलिए वो नहीं आ सके। मास्टर मंजर आलम साहब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये आए हैं। आपके सामने मास्टर साहब कुछ बातें रखेंगे, फिर उसके बाद जो है कमेटी बना दी जाएगी, फिर पूरा होगा इंशाअल्लाह। आप लोग गौर से सुने मास्टर साहब की बात को। वाक़ई दावा ना